وزیر خارجہ اسحاق ڈار پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ وہ جمعہ کو برسلز سے لندن پہنچے تھے اور انہوں نے برطانوی وزیر خارجہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کیں۔ صلی اللہ رسول الکریم، آپ سب چھٹی والے دن تشریف لائے۔ ہائی کمشنر صاحب کی انویٹیشن پہ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو پاکستان ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 23 مارچ ہے، اور دوسرا آج کے اس ہسٹورک دن پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے فارمر فارن سیکرٹری شہریار صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جوار رحمت میں جگہ دے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے۔ میری بیسیکلی یہ جو وزٹ تھی بڑی بریف، وہ برسلز میں فرسٹ نیوکلیئر انرجی سمٹ کے حوالے سے تھی، اور دوسری یو کے بائی لیٹرل، یو کے ہمارا ایک بہت ہی دیرینہ دوست اور پارٹنر ہے، تو اسی حوالے سے یہ وزٹ تھی۔ میں یہاں آیا تھا تو نیکسٹ ڈے مجھے برسل جانا تھا۔ برسلس میں الحمدللہ سمٹ وینٹ ویری ویل۔ ٹائم نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی جو 1960 کی دہائی میں جو یہ ایک انیشیٹو تھا، اور جو پاکستان کی ویژن تھی نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے، وہ اس وقت اور اگلے ڈیکڈز میں دو تین دہائیوں میں بہت ہی اس کے اوپر سرویلنس اور فوکس رہا دنیا کا۔ لیکن آج کلائمیٹ چینج کی وجہ سے وقت آ گیا ہے کہ اب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہائیڈرو اور نیوکلیئر انرجی آر دی سیفسٹ جو ہے وہ سورس آف انرجی ہیں، اینڈ دے آر دا بیسٹ فار میٹیگیٹنگ کلائمیٹ چینج کی پرابلمس کو۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ویژن تھی، ہم نے پچھلے ٹینیور میں جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے 2013-17 میں، ہم نے K2 K3 آپ کو یاد ہوگا، اس کو ہم نے شروع کیے، افتتاح کیا، ارتھ بریکنگ ہوئی۔ الحمدللہ ابھی ہم نے اس گورنمنٹ پچھلی جو 16 مہینے کی تھی، اس میں C5 کا جو ہے پروجیکٹ، اس کو ہم نے سائن آف کیا چائنا کے ساتھ، اور اس کی ابھی جو سول ورک شروع ہو چکے ہیں۔ تو ان ٹوٹل اس وقت ہمارا کوئی 3800 میگا واٹ کے قریب ہماری اس وقت کیپیسٹی ہے، میگا واٹ جو نیوکلیئر انرجی بیسڈ ہے، اور یہ آلموسٹ 8% آف دی ٹوٹل انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، اور 18% آف دی انرجی سپلائی ہے اس وقت۔ تو ہمیں ہماری جو پالیسی ہے نیشنل، اس میں ہمیں مزید اس کو آگے بڑھانا ہے۔ دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیف اور کاسٹ افیکٹو ایک سورس آف انرجی ہے، کلین ہے، ایز اے سیڈ کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے انتہائی اس کو اب امپورٹنس مل چکی ہے۔ تو میں نے اپنے ملک کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک وہاں پوائنٹ کو ریز کیا، جس کو کافی بعد میں کافی اور بھی جو صدور تھے دنیا کے آئے ہوئے، اور کچھ پرائم منسٹرز بھی، انہوں نے بھی اس کو ری انڈورس کیا۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت ملٹی لیٹرل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو اگریسولی پھر اس کی فائنینسنگ ان پروجیکٹس کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ اس کی جو کیپٹل کاسٹ ہے انیشل، یہ جو کنونشنل جو سورس آف انرجی ہیں اس سے مہنگی ہے، لیکن یہ لانگ ٹرم ہے، فیول فری ہے۔ تو اس کے لیے میں نے پاکستان کی طرف سے وہاں یہ ایک وائس آؤٹ کیا کہ دنیا کے اداروں کو چاہیے کہ جب COP28 میں یہ سب نے اتفاق کیا کہ نیوکلیئر انرجی اب دنیا کی ضرورت ہے، مثلاً پاکستان تقریباً 1% سے کم ہم ایمیشنز کرتے ہیں، لیکن پاکستان دنیا کے ٹاپ جو 7 ممالک ہیں اس میں ولنریبل ملک ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو پچھلے فلڈز آئے تھے ہماری 16 مہینے کی حکومت میں 22-23 والے سال میں، تو وہ ٹورنشل رینز اور فلڈز اور جو
100 बिलियन रुपीस की तो हमारी सिर्फ इमीडिएट रिलीफ असिस्टेंस थी वफाकी हुकूमत की। मैं उसमें फाइनेंस मिनिस्टर था, तो इसलिए मुझे नंबर्स पता हैं। तो इस हवाले से भी हमने ऑफ़र किया उस फोरम पे। अल्हम्दुलिल्लाह 60s की दिहाई से हमने जो काम शुरू किया, अल्लाह के फल से पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस भी है और एक्सपर्टीज़ भी है, और हम ग्लोबल कम्युनिटी को ये अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करने के लिए तैयार हैं। तो इसको भी पॉजिटिवली रिसीव किया गया। के हवाले से जो हमारे रेलेवेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान, उनके चेयरमैन और उनका नंबर 2 वो भी लोग मौजूद थे। तो ये एक कलेक्टिव हमारी वो विज़िट थी। बेल्जियन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी अच्छी ब्रीफ सी गुफ्तगू हुई, और इसी तरह जो मेरी तीसरी बायोलैटरल थी वो जो मोर रेलेवेंट थी वो डायरेक्टर जनरल IAEA के साथ थी, डॉक्टर ग्रोसी। ये पाकिस्तान पिछली दफ़ा हमारे टेन्योर में आ भी चुके थे, और उसके अलावा इन्होंने C5 जो हमारा इस वक्त सिविल वर्क्स हो रहे हैं चाइना के साथ, जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोजेक्ट है, उसकी इनागोरेशन पे भी इन्होंने पाकिस्तान विज़िट की। तो उनके साथ बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशंस हुई। उनके को अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ गोल्स हैं, तो मैंने उनको इंश्योर किया कि पाकिस्तान बहुत खुशी के साथ आपके साथ मिलकर ग्लोबल जो है कंट्रीब्यूशन में अपना हिस्सा लेगा, और हम इंशाअल्लाह आपको वेलकम करेंगे, आप दोबारा विज़िट करें। तो बहुत ही अच्छी हमारी उनके साथ एंगेजमेंट मेरी और मेरी टीम की हुई। चौथी मीटिंग जो मेरी बायोलैटरल हुई वो UAE के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी साहब के साथ हुई, और उनके भी फिर दोबारा के जो सबसे पहले जिस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन किया जब मैंने वज़ीर ख़ारजा का ओहदा संभाला, तो वो हिज़ हाइनेस शेख अब्दुल्ला बिन जायद थे। उनकी तरफ से बेस्ट विशेज़ मिली, और साथ साथ हमने फ्यूचर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के हवाले से एक दूसरे को कोऑपरेशन और एक दूसरे को जो हम सपोर्ट कर सकते हैं उसके हवाले से मेरी टीम और उनके साथ हमारी बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग हुई। और उनकी लीडरशिप की ग्रीटिंग्स मेरे लिए भी और ख़ुसूसन प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए मुझे वसूल हुई, जो कि मैंने उसको रेसिप्रोकेट किया। तो ये हमारी चौथी मीटिंग बायोलैटरल थी एक दिन में। पांचवी मीटिंग जो थी वो बड़ी सब्सटेंटिव थी, और वो मेरी बायोलैटरल मीटिंग अपनी टीम के साथ चाइना के नायब वज़ीर आज़म साहब के साथ थी। चाइना हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, और हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने हमारा ना सिर्फ साथ दिया बल्कि अमली तौर के ऊपर भी उन्होंने हमारी मदद की। हमारे जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, चाइना और हम हमेशा इकट्ठे नज़र आते हैं वहाँ काम करते हुए। तो हमारी मुख्तलिफ़ एरियाज़, ट्रेड, इकनॉमिक और म्यूचुअल कोऑपरेशन, फॉरेन रिलेशंस, कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो जैसे मैंने कहा कि बड़ी सब्सटेंटिव मीटिंग मेरी टीम की चाइना के वज़ीर आज़म साहब से हुई। मैंने उनको पाकिस्तान आने की दावत दी। वो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं अपनी हायरार्की में, चाइना की पॉलिटिकल हायरार्की में। वो कई दफ़ा पाकिस्तान आ चुके हैं और उन्होंने वादा किया कि वो बड़ी जल्दी पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। तो ये एक रन डाउन है। दिन एक था और सुबह 8 से शाम फ़्लाइट लेने तक 8:30 तक वी वर ऑन द मूव। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये सारी मीटिंग्स कवर की, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं जितना टाइम मुल्क का बचा सकूं वो मैक्सिमम काम को शॉर्टर पीरियड में, पॉसिबल पीरियड में कवर किया जाए। तो मैं आपको याद होगा कि 4.5 दिन वाशिंगटन में एज फाइनेंस मिनिस्टर जो 10 से 12 मीटिंग बायोलैटरल नहीं होती थी, वो मेरा रिकॉर्ड 45 से 54 मीटिंग्स का है। तो दैट वाज नॉट वंस बट ऑलवेज। तो उसी स्पिरिट के साथ कल परसों रात में फिर यूके पहुंच गया। लेट नाइट जब मैं वहाँ से मीटिंग्स ख़त्म हुई तो की हुई थी ताकि मैं एक दिन ज़ाया किए बगैर यहाँ पहुँच जाऊँ। और हाई कमिश्नर साहब ने मेरी मीटिंग्स यहाँ 2 मीटिंग्स ऑलरेडी फ़िक्स की हुई थी। एक तो ये कि मुझे बहुत ही इम्प्रेसिव जो है वो लेटर
लॉर्ड कैमरन साहब का मिला था मुबारकबाद का, जब मैंने ऑफिस टेक ओवर किया था। हमारा उनसे पुरानी डीलिंग है। जब मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2013 में, तो जो पहली फॉरेन डिग्नेटरी पाकिस्तान जिसने विज़िट किया था वो लॉर्ड डेविड कैमरन थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। उससे पहले जब वो अपोजिशन में थे और हम भी अपोजिशन में थे, वो भी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज हैं उनकी, हमारी पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मीटिंग्स की। तो मैंने उसका भी थोड़ा सा जिक्र किया जब मैंने उनको शुक्रिया का ख़त उनको, पहले मैंने उनको मुबारकबाद का लिखा था जब वो फॉरेन सेक्रेटरी हुए थे, और उसमें मैंने आई टच पेस्ट दोज ग्रैंड मेमोरीज। उनका भी बहुत ही प्यारा ख़त मुझे भी मिला। तो मैंने उनको ये इनवाइट किया ख़त के ज़रिए कि आप पाकिस्तान विज़िट करें। उन्होंने उस मेरी इनविटेशन को इन प्रिंसिपल कबूल किया हुआ है। हमारा हाई कमीशन और फॉरेन ऑफिस यूके का आपस में डेट्स को हतमी शक्ल दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में उम्मीद है कि वो विज़िट करेंगे। उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया कि अगर वो यहाँ होते तो वो बहुत खुशी होती कि वो मेरी और उनकी डायरेक्ट मुलाकात होती, वो मुझे रिसीव करते। लेकिन उनका बहुत पुराना प्लान्ड एक विज़िट थी ऑस्ट्रेलिया की और शायद गालबन थाईलैंड की। तो ही वाज ऑन ट्रैवल। वो गालबन एक्सपेक्टेड हैं शायद आज किसी वक्त ये कल वापस यूके में वापस आ रहे हैं। तो वी आर इन टच। मुझे अब उनका मैसेज मिला है कि वो मुझे पीर को यानी कल पाकिस्तान के परसों पाकिस्तान के, मैं इस तरह वो डबल 2 दिन के 1 दिन में काम कर रहा हूँ तो मिस कर रहा हूँ। मंडे को वो मुझे इंशाल्लाह आफ्टरनून में पाकिस्तान के टाइम में वो मुझे टेलीफोन कॉल करेंगे, जो कि हमने कंफर्म कर दी है। तो ये हमारे जो 2 मीटिंग्स थी, वो एक तो आपको याद है कि डिफेट जो है यूके का, ये अब फॉरेन ऑफिस का हिस्सा बन चुका है, फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। तो डिफिट को मर्ज कर दिया गया हुआ है, जो उनका यूके एड कह ले या डिफिट कह ले। तो डिफरेंट नेम्स में मैंने डिफरेंट अपने टेन्योर्स में इनके साथ काम किया हुआ है। तो अब करंटली एंड्रयू मिचेल हैं जो उसको हेड करते हैं। ही इज़ नंबर 2 इन द फॉरेन ऑफिस अपने लॉर्ड कैमरन के साथ। तो उनके साथ बड़ी अच्छी प्लेजेंट फ्रैंक डिस्कशंस हुई पाकिस्तान के माजी, पाकिस्तान का हाल, पाकिस्तान के फ्यूचर पोटेंशियल्स, फिस्कल एंड दूसरी चीज़ें। ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान की इमदाद करते हैं, उनको शुक्रिया भी किया मैंने। उनके प्रेडिसेसर्स बोथ विद ऑनरेबल जस्टिन ग्रीनिंग जो कि उस वक्त 2013-14 में शुरू में वो थी अपना डिफिट की हेड, और उसके बाद प्रीति पटेल। दोनों मेरी इनविटेशन पे अलग-अलग अपने जब ऑफिस उन्होंने ज्वाइन की तो पाकिस्तान को विज़िट भी किया था। तो इनको भी मैंने इनविटेशन दी है। एंड्रयू मिचेल जैसे मैंने कहा कि ये पाकिस्तान की डिफिट की तरफ से, और अब जो डेवलपमेंट और ये एक्शन मर्ज हो चुका है, तो उन्होंने मुझे वादा किया कि हम आने वाले साल में क्वांटम इंक्रीज़ करेंगे पाकिस्तान की जो है सपोर्ट डिफिट के हवाले से। उसके अलावा मेरी मीटिंग जो ईस्ट को लुक आफ्टर करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स को लॉर्ड तारिक अहमद साहब से हुई, और वो हमारी मीटिंग वो भी बड़ी इन डेप्थ सब्सटेंटिव फ्रैंक डिस्कशंस ऑल इश्यूज अंडर द रूफ। तो हमारी हाई कमिश्नर साहब भी मेरे साथ थे, और वो भी उनको भी मैंने इनवाइट किया कि पाकिस्तान विज़िट करें। उन्होंने भी उसको बड़ी हैप्पीली एक्सेप्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि ये टेक्निकली बायलैटरल मेरी फ़र्स्ट विज़िट जो है वो अब यूके में गिनी जाएगी, और जो ग्लोबल समिट के हवाले से वो मैं इन बिटवीन ब्रसल्स 1 दिन मैंने गुजारा है और 2 दिन यहाँ। आज मेरी वापसी है, तो आई वेलकम। आपके कुछ सवालात होंगे तो उसका भी जवाब दूंगा। इट्स अ सैड न्यूज़ कि कुछ अर्सा पहले किंग चार्ल्स वाज डायग्नोज्ड कैंसर पेशेंट। हमारी दुआएं हैं। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान एंड ग्रेट फ्रेंड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। आई हैव ऑब्जर्व्ड him going to East London Mosque and going to different Muslim communities. मेरी आज से नहीं, when he was Prince of Charles, उस वक्त से उनसे
میرے انٹریکشن رہا ہے اپنے گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اور سوشلی بھی. تو اس لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں. اسی طرح کل مجھے ہوم آفس میں یہ فارن آفس میں کنفرم کیا گیا کہ پرنسز آف ویلز کیٹ آلسو ہیز انفارچونیٹلی بین ڈائگنوز ود کینسر. وہ کچھ عرصے سے میڈیا سین پہ نہیں تھیں. ہماری بیسٹ وشز اور ان کی صحت کے لیے نیک تمنائیں ان کے ساتھ بھی ہیں.